KP classes dedicated to excellence. Hello students, welcome to KP classes. This is me Samriddhi Nolakha and welcome back to our 40-day crash course for your board examination in which we are going to revise entire syllabus of history and political science within 40 days. Yes my friends. So अगर आपने हमारे previous lectures नहीं देखे हैं, don't worry guys, we have the link in the description box so that you can check out and watch all the lectures and be updated with the coming lectures as well. And अगर अभी तक आप हमारी KP classes community का part नहीं बने हैं, वो links भी हमारे description में आपको मिल जाएंगे so that you can join our WhatsApp, Telegram and follow us on Instagram for daily news, informative videos, quizzes and latest news regarding CUET and both. So let's get started with this lecture. So if you want study notes, mind maps of all these lectures, कहाँ मिलेगा? बिल्कुल फ्री मिलेगा और हमारे ऐप पे मिलेगा which is KP क्लास एग्जाम प्रेप ऐप फॉर एंड्रॉइड प्ले स्टोर पे मिल जाएगा और ऐप स्टोर पे आपको क्लास प्लस के नाम से मिल जाएगा. लॉगिन करिए, क्रेडेंशियल्स डालिए, फ्री मटेरियल पे क्लिक करेंगे, अपना कोर्स सिलेक्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट सेक्शन में यू विल बी गेटिंग ऑल दीज मटेरियल्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप टेस्ट पे क्लिक करेंगे सो यू विल बी गेटिंग ऑल द सैंपल पेपर्स फॉर द रेलेवेंट सब्जेक्ट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. अभी के अभी डाउनलोड करिए KP क्लास एग्जाम प्रेप ऐप. बात करते हैं इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी डिस्कस्ड एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, कंटेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर, कंटेम्पररी साउथ एशिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सिक्योरिटी, environment and natural resources. So today we are going to do globalization in this lecture and with that we have completed contemporary world politics. Yes my friends, देखते ही देखते we have come today 12 of our crash course और हमने एक book पूरी complete कर दी है. So stay tuned for the coming lectures as well. So बात करते हैं globalization की, but उससे पहले we at KP classes have launched these courses for you, our Udan batch and our Sarthi batch, which is available for all the streams, whether you're from science, humanities or commerce. तो ये उड़ान बैचेस हमारे सारी स्ट्रीम्स के लिए अवेलेबल हैं. और क्या मिलेगा आपको उड़ान बैचेस में? यू विल बी कंप्लीटिंग एंटायर CUET प्रिपरेशन. कितने में मैम ये तो बताओ? इन जस्ट 4999, yes my friends, in just 4999 you will be completing entire CUET preparation and you will be getting all the possible help from our side, which is these books: political science, economics, history, socio, psych, GT and language. सारी की सारी books की PDFs will be available to you, hard copies will be available to you and it has more than 1200 MCQs. क्या बात कर रहे हो मैम? 1200 MCQ? Yes my friends, 1200 MCQs including previous year questions so that you can practice as many MCQs as possible. तो वेट क्या कर रहे हैं? अभी के अभी हमारे वेबसाइट या फिर हमारे ऐप के थ्रू ये कोर्सेज को आप परचेज कर सकते हैं so that you can start your CUET preparation along with boards. So globalization की बात करें, to mark a definition that what do you understand by the term globalization? Globalization है क्या? ये flows है किसका? Ideas का. उसके साथ साथ capital जा रहा है, commodities जा रही हैं, people across the different parts of the world. मतलब ये सारी जो things as well as people living in non-living entities, जब एक country से दूसरे country के बीच में आपस में ये trade हो रहा है या फिर services का exchange हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन. तो ये मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है. इट्स अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल है? जी नहीं. क्या ये इकोनॉमिक है? जी नहीं. ये मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है क्योंकि हम आइडियाज का भी फ्लो देख रहे हैं, कैपिटल का भी फ्लो देख रहे हैं, इवन गवर्नमेंट्स का भी फ्लो देख रहे हैं. मोदी जी कहीं ना कहीं किसी कंट्री में समिट अटेंड करने के लिए जा रहे हैं तो इट इज पॉलिटिकल एक्सचेंज एज वेल. So it has political, economic, cultural manifestations. Then as a concept, globalization fundamentally deals with the flows and these flows can be ideas moving from one part of the world to another part of the world. And this is a crucial element in the worldwide interconnectedness which is created and sustained
as consequence of these constant flow. So globalization increases the volume of the trade in goods and services, inflow the foreign capital, increases FDI, creates new job, strengthens domestic economies, improves productive efficiency and healthy competition as well. So keyword क्या है इधर? वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस. अब बात करते हैं कॉजेस. ग्लोबलाइजेशन के कॉजेस क्या हैं? किन कारणों से ग्लोबलाइजेशन हमें देखने को मिला? सो फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट कॉज इज, it's not a single factor, it is technological factor. So ability of ideas, capital, commodities, people to move more easily from one part of the world to another has been made possible by technological advances, and any event taking place in one part of the world could have an impact on another part of the world. So globalization, however, does not emerge merely because of the availability of the improved communications only, but there are several other factors in the process. अब कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं, इम्पैक्ट की बात करते हैं. व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन? तो ग्लोबलाइजेशन की क्या इम्पैक्ट है? तो लेट्स स्टार्ट विथ पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस. व्हाट आर द पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस? सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस क्या है? रिजल्ट इन इरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी एंड लिमिट्स देयर फंक्शन. कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन की वजह से स्टेट के जो टास्क हैं, स्टेट का जो काम है, वो कहीं ना कहीं लिमिट हो रहा है, एंड उसकी वजह से क्या देखने को मिला? लिमिटेशन देखने को मिली. पॉइंट नंबर 1. दूसरा, वेलफेयर स्टेट क्या बन रहा है? मिनिमल स्टेट. सो रोल ऑफ द स्टेट हैज बिकम मिनिमल. स्टेट का इंटरफेरेंस हमें कम देखने को मिलता है. जो स्टेट के कोर फंक्शन है, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड सिक्योरिटी, सिर्फ इतना ही है, उससे ज्यादा स्टेट काम नहीं कर रहा. तो बाकी चीजें कौन इन्फ्लुएंस कर रही हैं? मार्केट को इन्फ्लुएंस कर रहा है. ये इकोनॉमिक और सोशल प्रायोरिटीज बन चुकी हैं. मार्केट कि व्हाटएवर यू वांट टू प्रोड्यूस, ये कौन डिसाइड करता है? मार्केट ही डिसाइड करता है, डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग. तो द एंट्री एंड इंक्रीज रोल ऑफ एमएनसीज, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं स्टेट का कैपेसिटी एंड स्टेट के डिसीजंस कम हो चुके हैं. दूसरी तरफ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी तरीके से स्टेट की जो प्रिमेसी है वो रिड्यूस हो गई. कहीं ना कहीं कोर फंक्शन जैसे मैनेजमेंट हो गया, राइवलरीज हो गई कंट्रीज के बीच में, ये अभी तक खत्म नहीं हुई हैं. तो इसको क्या एमएनसीज देख रही हैं? जी नहीं, वो भी स्टेट देख रहा है. तो ये क्या है? एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है कि पूरी तरीके से स्टेट की जो कैपेसिटी है वो नहीं खत्म हुई. स्टेट अभी भी इंपॉर्टेंट है. In some respects, the state capacity has received a boost as a consequence of globalization. टेक्नोलॉजी की वजह से भी स्टेट का काम इम्प्रूव हुआ है. कोविड में देखा गया तो काफी सारे जो समिट्स थे वो ऑनलाइन कंडक्ट किए गए थे. Then with this information, the state is better able to rule and not less able. State become more powerful than they were earlier as an outcome of new technology. So due to globalization, a new type of global governance देखने को मिली है हमें. अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस की. सो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस एज अ 4 मार्कर पूछा जा सकता है, उससे ज्यादा इसका वैल्यू नहीं है. अब बात करेंगे इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस की. यहाँ पे ब्रॉडर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग आ जाता है. जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो इकोनॉमिक टर्म्स में बात करते हैं. ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज हैज बीन एक्सपैंडिंग, एंड इट इज नॉट ओनली ट्रेड, सर्विसेज कितना ज्यादा इंक्रीज हुआ है. सो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन यूजुअली इन्वॉल्व्स ग्रेटर इकोनॉमिक फ्लोज अमंग द डिफरेंट कंट्रीज, और ये वॉलंटरी होता है और कहीं ना कहीं ये फोर्सफुल भी होता है. ग्रेटर ट्रेड की वजह से रिस्ट्रिक्शंस कहीं ना कहीं कम हो गई हैं, एंड इंपोर्ट्स भी कहीं ना कहीं हो गए हैं, तो ये नेगेटिव हो गया. Similarly, restrictions on movement of capital across the countries have also been reduced. It means that the investors in the rich countries can invest their money in countries other than their own. So ये क्या है? एक पॉजिटिव है. Then globalization की वजह से आइडियाज भी कहीं ना कहीं फ्लो में हमें देखने को मिले हैं. स्प्रेड ऑफ इंटरनेट, कंप्यूटर रिलेटेड सर्विस, ये भी क्या है? एक एग्जाम्पल माना गया. Similarly, the restrictions on movement of capital across the countries have also been reduced. इन restrictions को भी हमने कहीं ना कहीं reduce कर दिया. It means that the investors in the rich countries can invest in their money in that. Oh, repeat हो गया. It's okay. Oh, this has been repeated. Sorry. Yeah. But globalization की वजह से same degree
of increase in the movement of people. तो दूसरा क्या हो गया, increase in the movement of people. Either tourism, लोग जा रहे हैं फॉर टूरिज्म, और या फिर बिजनेस पर्पसेस के लिए या सेटल होने के पर्पसेस के लिए. तो एक इंटेंस डिविजन ऑफ ओपिनियन ऑल ओवर द वर्ल्ड है. Those who are concerned about the social justice are worried about the extent of the state withdrawal caused by the process of economic globalization. So they have emphasized the need to ensure institutional safeguards for creating the social safety nets. Write down in the comment section what are social safety nets. कुछ इकोनॉमिस्ट ने इसको रिकोलोनाइजेशन भी बोला है वर्ल्ड का. So advocates of economic globalization argue that it generates greater economic growth, well-being of the larger section of the population when there is deregulation. So greater trade among the countries allow each economy to do what it has to do with the best. अगेन इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन 4 मार्कर में पूछा जाएगा, उससे ज्यादा उसकी वेटेज नहीं है. लास्ट मैनिफेस्टेशन हो गया कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस, कि हमारे कल्चर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है ग्लोबलाइजेशन का. सो इन आवर होम व्हाट वी ईट ड्रिंक वेयर इंडीड, ये सब क्या करता है, हमारी प्रेफरेंस को कौन शेप करता है, ग्लोबलाइजेशन ही शेप करता है. और ये क्या है, ये कल्चर है. तो द कल्चरल इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन लेड टू द फेयर दैट यहाँ पे कल्चर्स को थ्रेट है. इट डज सो बिकॉज ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू द राइज ऑफ यूनिफॉर्म कल्चर. एक सिमिलर कल्चर बन जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, 1 मार्कर डेफिनेशन, कल्चरल होमोजेनाइजेशन. एक सिमिलर कल्चर देखने को मिल रहा है. So this rise of a uniform culture is not the emergence of the global culture. तो ये global culture नहीं है. And what we have in the name, it would be a mistake to assume that cultural consequences are only negative. तो ऐसा नहीं है कि एक homogenization हो रहा है, cultural homogenization हो रहा है तो negative है. It has some positive aspects as well. तो culture क्या है, static नहीं है, हमेशा change होता है और accept भी होता है. तो कुछ external influences बिल्कुल negative माने जा सकते हैं. They reduce our choices, but sometimes external influences simply enlarge our choices and sometimes they modify our culture. ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, इंटरमिक्सिंग हो गई. आज मुझे कुर्ता और ब्लू जीन्स का कॉम्बिनेशन अमेजिंग लगता है, तो कुर्ता एंड ब्लू जीन्स का जो कॉम्बिनेशन है, हम क्या कर रहे हैं, कल्चर को पूरी तरीके से इरोड नहीं कर रहे हैं, हम उसको मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, अडेप्टेबिलिटी की कोशिश कर रहे हैं. So while cultural homogenization एक एस्पेक्ट है ग्लोबलाइजेशन का, it also generates opposite effect. इसकी वजह से each culture becoming more different and distinctive, और इसको हम बोलते हैं cultural heterogenization, rise of different cultures at the same time. So again it is a 2 marker definition, दोनों ही individually पूछा जा सकता है. अब resistance to globalization की बात करें, इसको criticism मिला है, ग्लोबलाइजेशन के कंसेप्ट को बहुत ज्यादा criticism भी मिला है. For some, globalization represents a particular phase of global capitalism. पहला वो पॉइंट ही यही है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से रिच आर बिकमिंग रिचर, पुअर आर बिकमिंग पुअर. Those who can afford it, they can go, and those who don't, they don't spend it. So they are worried that the traditional culture will be harmed under the Western culture. तो कहीं ना कहीं उनको ये भी डर लग रहा है कि वेस्टर्नाइजेशन का कंसेप्ट इंप्रूव हो सकता है. So due to globalization, MNCs come to countries and the traditional small industries could not compete with them and they got vanished. Thus resistance come from them against all the processes. इसी के साथ वर्ल्ड सोशल फोरम का आगमन हुआ था and it is a platform, global platform. वहां पे राइटर्स, एक्टिविस्ट, वुमेन, लेबर आए थे और न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन को अपोज करने के लिए आए थे. सो अगेन 4 मार्कर और 6 मार्कर, इंडिया एंड रेजिस्टेंस. इंडिया क्यों रेजिस्ट करता है? सो रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन in India has become from different quarters, that is left wing protests to economic liberalization. Trade unions of industrial workforce organized the protest against multinational patents, resistance from political rights, etc. etc. और ये क्या है? वैलेंटाइन डे, वेस्टर्नाइजेशन ऑफ ड्रेस. जो आपके स्कूल्स में लड़कियां फैशन करते हुए आती हैं, तो ये कहीं ना कहीं संस्कृति के खिलाफ माना गया है. एंड देयर हैव बीन लेफ्ट विंग प्रोटेस्ट टू इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन वॉइस थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल एज थ्रू सम अदर फोरम्स. सो 4 या फिर 6 मार्कर में ये पूछा जा चुका. अगर हम कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें, इंटायर
पॉलिटिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस 6 मार्कर का क्वेश्चन ही बनता है और हमेशा पूछा जा चुका है. So this was all about this chapter. I hope you like this video. So I'll see you in the next lecture. And again, I'm reminding you, check out the description box. उसमें आपको हमारी groups के link मिल जाएंगे. Other than that, you will be getting the links of our playlist so that you can get updated. And सारे lectures आप अच्छे से revise करें and stay tuned with us. So I'll see you in the next class. Till then, take care. Bye bye. KP Classes. Dedicated to excellence.